नमस्कार, मैं टोमिडो के लेंडो लपाराडा का डीजीसी काम डीपीओ। आज 5 तारीख है मार्च का। हम लोगों का यहाँ में कारको हेरिटेज में लपाराडा डिस्ट्रिक्ट का गोल्डन जुबली मेरिटोरियस अवार्ड देने जा रहे हैं। यहाँ में क्लास 3 से लेकर 12 तक होगा। तो आपको मैं बताता हूँ, क्लास 3 में जो लास्ट एकेडमिक सेशन में 3 और 4 होम एग्जाम में फर्स्ट मिलने वाला 20,000 मिलेगा, सेकेंड जो है 15,000, थर्ड जो है 10,000। देन क्लास 6, 7 वो भी होम एग्जाम में फर्स्ट 30,000, सेकेंड 25,000, थर्ड 20,000। देन क्लास 5, 8, 9, 11 ये AP बोर्ड है, अरुणाचल बोर्ड इंटरनल एग्जामिनेशन। ये फर्स्ट होगा 40,000, थर्ड 30,000 और सेकेंड 30,000, थर्ड 25,000। देन CBSE क्लास 10 और 12 जो लास्ट एकेडमिक सेशन का, तो फर्स्ट 50,000 मिलेगा, सेकेंड 40,000, थर्ड 30,000। ऐसे है यह योजना 2006 अक्टूबर 20 तारीख को, आज से 20 साल पहले जो इंडियन हम लोग का आज़ादी हुआ 1947 को, 47 से लेकर 50 साल होने का बावजूद भी, गोल्डन जुबली मनाने का बावजूद भी हम लोगों का सारा तमाम इंडिया में अक्रॉस द नेशन हम लोग का गरीब सीमा रेखा से नीचे वाला यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन का बहुत पढ़ाई में जानता है, लेकिन वो आगे पढ़ने का उसका मौका नहीं मिला और माँ पिता का गरीब का वजह से। तो इसको देखते हुए LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। इन लोगों ने सोचा अक्रॉस द नेशन जितना भी बच्चा पढ़ाई में तेज है लेकिन वो आगे नहीं पढ़ पाता है, वो गरीब माँ पिता को मदद के रूप में ये योजना बनाया गया है। उसको कहता है गोल्डन जुबली मेरिटोरियस स्कॉलरशिप। तो स्टूडेंट यह क्लास 3 से लेकर 12 तक, ये सिर्फ नहीं है, 10 पास का ग्रेजुएशन में भी जो लोग 12 पास होने के बाद में ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले इन लोग को भी ये इंसेंटिव रखा गया है। वो ध्यान में रखते हुए हम लोग आज यहाँ मेरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर DC मैडम उसका प्री ऑक्यूपेशन है, कोई बिजी है, और उसके बाद MLA मैडम भी प्री ऑक्यूपेशन है। इसलिए हम लोगों का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इजुम आंगो एपीसीएस वो चीफ गेस्ट का रूप में आएगा। और उसके बाद में गेस्ट ऑफ ऑनर में हम लोग का नया लपाराडा डिस्ट्रिक्ट का जिला चेयरपर्सन यामर रिबा इन लोग आएगा। और यहाँ अवार्डी जो लोग अवार्ड लेने वाला बच्चा लोग आया है, और बच्चा लोग ठीक आज होम एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसलिए उसका बदले में उसका माँ पिता आएगा या पेरेंट आएगा और यहाँ हमारा तमाम स्टाफ। इसलिए आज यह समारोह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Respected dignitaries on dais, honored officers, esteemed teachers, their parents, and my beloved students. A very warm and pleasant welcome to all of you on this auspicious occasion of the Golden Jubilee Meritorious Students Award, Leparada 2024-25. I am Kapi Gade, and I feel delighted to be your anchor for this special program. May I now request Sri Doke Lombu, BL General, to deliver the welcome address. Good morning, learned Additional Deputy Commissioner, Laparda District, Ijumagu Sir, Honorable ZPC, Laparda District, Nyamar Ribaji, Deputy Director of School Education, Laparda District, DAO, and principals, headmasters, and all the awardees and parents and dignitaries present here. I welcome on this very auspicious day to you all here, Golden Jubilee Meritorious Student Award Celebration
here at the Karko, our museum, come Heritage Center at Basar. Thank you so much. We shall now proceed with the presentation and felicitation of our chief guest and guest of honor with a token of respect. May I request our DDC Sir, Sri Tommy Doke, to honor our chief guest, Additional Deputy Commissioner Leparada, Sri Iju Mangu Sarji. Now I request our District Program Coordinator Sri Tojum Judosa to honor our guest of honor, Jila Parishad Chairperson Sri Nyama Rubasarji. May I now request ADO Sri Madan Rubasa to present the token of love to Srimati Papi Siram, Principal Government Higher Secondary School, Darin. Thank you, Rubasa. Now request BO Academics Rinomi Lombusa to present the token of love to our Vice Principal Srimati Manjula Karga from Government Higher Secondary School, Basar. Thank you, Madam. Then I'd like to request all the headmasters and headmaster in charge to come forward for a small token of love. Please come forward. May I now invite Deputy Director of School Education Leparada, Sri Tommy Doke Sir, to enlighten us on the aims and objectives of the Golden Jubilee Meritorious Students Award 2024-25. सबको नमस्कार. Our most respected and learned Additional Deputy Commissioner Leparada, who is none other than our Ijum Ausser, appreciates, and Honorable most lucky man of the 2026 year, our Jila Parishad Chairperson Yamar Riba from Leparada, guest of honor, and Principal Dari Higher Secondary School, and the Principal in charge, Vice Principal Government Higher Secondary School, Basar, and my respected all the Pil functionaries, officers and officials, and parents, and awardees, those who are gathered here today. आप लोग का ऑनरेबल एमएलए मैडम और डीसी मैडम को मिला था. एमएलए मैडम का प्री ऑक्यूपेशन रह गया और डिप्टी कमिश्नर मैडम का पैर आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है इटानगर का, इसलिए वो नहीं आ पाए. तो इसलिए हमारा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को हमने टेलीफोन किया. जब हम फोन किया तुरंत वो रेस्पॉन्ड किया एंड ओके किया एंड एग्री किया. इसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ. देन नंबर 2 मेरा जेपीसी जो बलिजन में था, तो वो जोखों का कोई प्रोग्राम में था, तो बलिजन में मैडम के साथ में था. हमने जब फोन किया वो तुरंत हमको रेस्पॉन्ड किया, ओके मैं आ रहा हूँ. फिर दोनों को लेकर मैं आप लोग को थैंक देता हूँ, आप दोनों को, क्योंकि हम लोग आने वाले दिनों में, आने वाला साल ज़्यादा टाइम वक्त नहीं लगेगा. उसमें हम लोगों का एडिशनल कमिश्नर होकर जो यहाँ बैठा है वो कभी हम लोग का बासार का डीसी भी बन सकता है, या लोअर सियांग का डीसी भी बन सकता है, वेस्ट सियांग का डीसी भी बन सकता है. तो ऐसा वाला आदमी हम लोग के साथ है. आज का चीफ गेस्ट का हिसाब में आपको मैं 100 बार शुक्रिया देता हूँ. और हम लोग का जेपीसी हम किस लिए लक्ष्य बोलता है, इस टाइम 26 में उसका बहुत लाभ उसको साथ दिया. जेपीसी तो सीधा पहले बार कॉन्टेस्ट किया, जिला मिला, उसका बाद सीधा जेपीसी उठ गया. तो इसलिए लकी बोलता हूँ. इसके आपको भी बेस्ट विशेष देता हूँ. आने वाला दिनों में आपका मैंने जो भी तमन्ना यानी कि आपने जो सोचा है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना है. देन अभी आज का जो गोल्डन जुबली मेरिटोरियस अवार्ड जो कहता है, वो गोल्डन जुबली मेरिटोरियस अवार्ड ऐसा है. क्यों गोल्डन जुबली बोला? गोल्डन जुबली मतलब 50 साल हो गया. आज़ादी हुआ कब 1947 15 को.
आज़ादी होने का बाद में हम लोग का इंडिया 50 साल हो गया। 50 साल होने का बावजूद भी 2006 अक्टूबर 20 तारीख को यह प्रोग्राम रखा गया है। इसको शुरुआत किया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर होते हैं मुंबई में। इन लोगों ने सोचा हम लोग का भारत में अभी पढ़ाई लिखाई भी बहुत हो गया, 50 साल हो गया, बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन अभी तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो मतलब गरीब सीमा रेखा का नीचे वाला आदमी बहुत है, जिसका चलते अभी मोदी गवर्नमेंट ने 3 रुपया चावल और फ्री ऑफ चावल बांटता है। तो ऐसे वाला बेटा बेटी, जो लोग बेटा बेटी मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई में तेज है, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहे, इसलिए कि उसका माँ पिता पैसा वैसा मिलता नहीं है और साल में कमाई दमाई बहुत कम है। इसका वजह से 2,50,000 ज़्यादा से ज़्यादा 2,50,000, 3 लाख या 4,000 तो सीमित है। तमाम हर क्षेत्र से उन लोग का कमाई, तो वो पैसा नहीं होने का वजह से बच्चा इतना पढ़ाई लिखाई जानता है, लेकिन आगे पढ़ने के लिए उन लोग खर्चा करने का नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए अक्रॉस द नेशन, थ्रू आउट द कंट्री, ये LIC ने एक तो बनाया, माने इन लोग का तरफ से मदद करें, तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला को मदद करना है, तो इन लोग को आगे पढ़ने देना है। इसका चलते इन लोग ने यहाँ रखा है गोल्डन जुबली मतलब 50 साल का बाद, और अभी तो 20 साल हो गया इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और हम लोग को अरुणाचल में तो लेट में लागू हुआ। तो ऐसे करके यहाँ आपका क्लास 3 आप लोग सुनिए, कम रकम नहीं है। क्लास 3 आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, क्लास 3 का जो लास्ट ईयर में फर्स्ट मिला था, इसको तो 20,000 दे रहे, तो 20 टाइम कम नहीं है। तो बच्चा लोग को तुम लोग 5,000 तो मिलना मुश्किल है, तुम लोग को 20 टाइम दे रहा है। देन जो सेकेंड आया डिस्ट्रिक्ट में, उसका 15,000। देन उसका बाद में जो थर्ड आने वाला का कितना है, 10,000। देन उसका बाद में क्लास 4 एंड 7, ये जो होम एग्जाम को बोल रहे हैं, होम एग्जाम 4 एंड 7 का 30,000 फर्स्ट मिलने वाला, 30,000 तो कम नहीं है। देन उसका बाद में सेकेंड वाला 25,000, देन थर्ड जो है 20,000। तो ऐसे करके कम रकम नहीं है। देन उसका बाद क्लास 5, 8, 9, 11, ये तो अरुणाचल प्रदेश बोर्ड एग्जाम है, या CBSE इंटरनेट एग्जाम भी बोलता है। पेपर ये ईटानगर से आता है, यहाँ से सेट होता नहीं है, तो इसलिए, लेकिन उसका पेपर इवैल्यूएशन अपना डिस्ट्रिक्ट में करता है, इसलिए उसको इंटरनल कहा जाता है, अरुणाचल बोर्ड एग्जाम कहा जाता है। इन लोग को क्लास 5, 8, 9, 11 को जो डिस्ट्रिक्ट में टॉपर आया, कम नहीं है 40,000 फर्स्ट वाला, देन सेकेंड वाला 30,000 गवर्नमेंट सरकार दे रहा है, देन थर्ड वाला 25,000। वो तो बच्चा लोग के लिए तो बहुत बड़ा रकम है, तो इसलिए आप लोग का खुशी का बात है। देन उसका बाद में लास्ट हम लोग का CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 एंड 12 अभी जो एग्जाम चल दे रहे हैं, इन लोग का जो फर्स्ट क्लास 12 में लास्ट ईयर में आया था, मामूली नहीं है, 50,000, दैट मीन्स 50,000, यू विल गेट 50,000 द फर्स्ट सिक्योर वाला। देन सेकेंड वाला 40,000, द थर्ड जो है 30,000। इस तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द यू नो स्पॉन्सर ये शुरुआत किया था। इट वाज स्टार्टेड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड उन लोग की बियर करता है, LIC कॉर्पोरेशन ने बियर करके बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट लोग को आगे बढ़ाने के लिए, आगे पढ़ाई लिखाई होकर जाने के लिए तेज वाला को मदद का रूप में दिया जाता है। इसलिए हमारा कहना है, ये बच्चा लोग आजकल जितना हम लोग जाके, हम लोग का राउंड में बार बार जाता हूँ, उसका बाद मेरा ये सपोर्टेड ऑफिसर लोग बार बार जाता है, और हेड ऑफ स्कूल तो है ही है, टीचर लोग है ही है, तुम लोग को बार बार बोलता है पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे दो, पढ़ाई में अपना मम्मी पापा को बुद्धू मत बनाओ, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं बोल के बीच में गायब नहीं होना है, हमेशा क्लास में रेगुलर होना है। अगर कुछ तुम टीचर टीचिंग किया हुआ समझ में नहीं आता है, तो सर लोग को शर्मिंदा नहीं कर कुल्लू कुल्ला पूछना है, ये सर मैडम आपने जो टीचिंग किया ये पर्टिकुलर टॉपिक को हम मालूम नहीं है, समझ में नहीं आता है, काइंडली बता दीजिए। तो उन लोग दे आर रेडी टू टेल यू एवरीथिंग। तो ऐसे नहीं करके हम लोग का बच्चा लोग, माँ पिता सब, तो आप लोग का जो आज जितना पेरेंट आया है, हम लोग सबका ऑब्जेक्टिव, हम लोग का मेन एम क्या करना है, अपना बच्चा को पढ़ाई लिखाई अच्छे से करके आगे जाके अच्छा आदमी बनने देना है। अच्छा आदमी बनना मन लोग टेक्नोक्रेट, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो सिर्फ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, वो सिर्फ नहीं है।
वो अच्छा आदमी बनना मतलब देश का अच्छा नागरिक, चाहे वो अगर बिजनेस भी करता है तो ईमानदार वाला बिजनेस, या पॉलिटिक्स में घुसता है वो भी अच्छा वाला पॉलिटिकल लीडर बने, और कोई लॉयर बने वो भी अच्छा वाला वकील वकालत काम करे। इस तरह का हम लोग का सब मम्मी पापा का सोचना ये है। उसको आजकल का बच्चा लोग कोई कोई ठीक है, लेकिन कोई कोई उसको बर्बाद झूठ मूठ का मम्मी पापा को बुद्धू बनाने वाला ज़्यादातर रह गया। क्योंकि गौर में लोग आप लोग सोचता है मेरा बच्चा तो स्कूल में चला गया, अच्छा ठीक है यूनिफॉर्म लेके किताब लेके चला गया, लेकिन बाद में पता चलता है तो स्कूल में वो पहुंचा नहीं है, ना पहुंचा भी था, एक पीरियड का बाद भाग गया कहीं में जाके मैं चुप गया। और थोड़ा ग्रोन अप वाला क्लास 9, 10, अभी तो हमारा टाउन मिडिल स्कूल का हमको रिपोर्ट देता है वो भी क्लास 6 to 8 है, लेकिन क्लास 6 तक पहुंचने का बाद में मैंने केयर करना मुश्किल हो गया, क्योंकि लिबर्टी ज़्यादा एंजॉय हो गया, अपना फ्रीडम ज़्यादा एंजॉय हो गया। इसलिए लड़का लड़की का आजकल आंख एक दूसरे को मारना, प्यार मोहब्बत, और तुम लोग का ये मोबाइल से चैटिंग करना, यही आदत में ज़्यादा ये सागर में डूब गया। ऐसे नहीं करना है। अभी जो ये प्राइज मिल रहा है अभी का पढ़ने आने वाला साल को तुम लोग मिलना है, क्योंकि गवर्नमेंट तुम लोग को आगे पढ़ने के लिए ऐसे पैसा फ्री में दे रहा है, उसको तो तुम लोग बड़ा सोचना है, अरे ये हम लोग का अच्छा मौका है। ऐसे नहीं करके मम्मी पापा को झूठ बोलने वाला बुद्धू बनाने वाला आदमी नहीं बनेगा। हमेशा अपना मम्मी पापा को एकदम कॉन्फिडेंस में रखना है और इसको विश्वास होने देना है। उसका साथ साथ में स्कूल आने का बाद में हेड ऑफ स्कूल देन टीचर जो तुम लोग को दीन को ये टीचिंग करता है, इन लोग का साथ में अच्छा संबंध बना कर रखना है और तालमेल अच्छा होना है। तो ऐसे करके बच्चा लोग तुम लोग का आजकल पढ़ाई में ध्यान दे, तो बोलना से भी कोई तिरंगा खा रहा है, पान खा रहा है, गुटखा खा रहा है, अमूल खा रहा है, सिगरेट बीड़ी पी रहा है, ऐसे करके तुम लोग उसी से शुरू होकर लास्ट में जाकर ड्रग एडिक्ट हो जाता है। ड्रग एडिक्ट होने का बाद में ड्रग टॉलरेंस, ड्रग डिपेंडेंट, जिसका चलते बिना तुम लोग जी नहीं सकता है, लाइफ बर्बाद हो जाता है। ये सब दुनिया में नहीं जाने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये इनाम रखा गया है। न मेरा भारत का जितना लड़का है बच्चा है, क्योंकि गरीब का बच्चा जो लोग जिसका माँ पिता कमाई दमाई नहीं है, साल में या बहुत मुश्किल से जीना पड़ता है, लेकिन इन लोगों का बच्चा पढ़ाई में तेज है, तो इन लोग को कैसे तेज वाला को आगे ले जाना है, आदमी बनने देना है बोल के ये वॉलंटरीली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इतना कम मैंने अभी अरुणाचल ये जितना डिस्ट्रिक्ट में इक्वल है, चाहे डिस्ट्रिक्ट का स्कूल किसी का बड़ा हो छोटा हो, डिस्ट्रिक्ट छोटा हो बड़ा हो, इसका मतलब नहीं है, या इक्वली ये अमाउंट दिया गया है। अमाउंट अभी रिलीज नहीं हुआ है, अमाउंट को पहले कॉन्फ्रेंस पास करके इटरनल रखा है, SBI स्टेट बैंक में है बोला है। अरे क्यों जल्दी नहीं, हम लोग तो प्रोग्राम करने जा रहे हो, तो नहीं प्रोग्राम तो कीजिए, लेकिन वो SBI को बात कीजिए बोला। SBI का हम लोग क्यों बात करेगा, SBI तो हम लोग SBI बासर में है, इटरनल का तो इटरनल बात करना है। तो इसलिए हम लोग का पैसा अभी इधर रिलीज होकर नहीं आने का बावजूद भी आप लोग को इन एडवांस आपका यह डबल चेक दिया जाएगा और मेमेंटो दिया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट का तरफ से आप लोग को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आने वाले दिनों में, आने वाले ज़िंदगी में, क्योंकि ये मेरिटोरियस अवार्ड है, तो इसलिए ये बच्चा लोग को कहता है अभी इसको सोच के अभी जो 12 में मिलने वाला तुम तो कॉलेज चला जाएगा, कॉलेज में भी ये प्रोविजन सेम है, उसमें और ध्यान से पढ़ो, यूनिवर्सिटी में टॉपर बनो। और अभी जो क्लास 3 में से मिलने वाला तुम लोग अभी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड में फिर और जो सेकंड में आया था, थर्ड में आया था, सेकंड आने की कोशिश करना है, सेकंड आने वाला फर्स्ट आने की कोशिश करना है, देन 5 वाला 6 वाला 7 8 9 10 11 12 इसी तरह सबके सब अगर इस बार मिला। सुबह हम एक आदमी को मिला, मेरा तिरविन का तानी किया, ताई का एक मिला है, उसका लास्ट ईयर में उसका 2 बच्चा ही मिला था बोला है, अभी एक बच्चा नहीं मिला है, सेकेंड मिला है, बहुत अच्छा बात है, लास्ट ईयर में मिला, इस बार भी मिला। तो इसलिए उसको जब आने वाला ये नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट में आने के लिए, अभी तो सेकंड मिल रहा है ना, तो डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट का ये टॉपर है, लेपारा डिस्ट्रिक्ट का टॉप 3 को सेलेक्ट किया गया है। तो इसलिए बच्चा तुम लोग को बोलता है ध्यान दे दो, मम्मी पापा को बुद्धू मत बनाओ, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो, शर्मिंदा मत करो, और सार का साथ अच्छा से मिलजुल कर रेगुलर स्टडी करना है क्लास में और घर में, नंबर 1। और नंबर 2 हमारा पेरेंट लोग को
आप लोग हम हर बार देखते हैं यहाँ एक दो सिर्फ पेरेंट होगा, बसर हायर सेकेंडरी में हो, वेदर इट इज बसर हायर सेकेंडरी स्कूल और दारी हायर सेकेंडरी और ट्रिब्यून हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ भी हो, बच्चा को मेरा बच्चा अटेंडेंस ठीक है नहीं कहती ना, ये स्कूल जाते रहता है, सही में जाता है ना नहीं जाता है, चेक करने वाला हार्डली 100 में से 1 होगा। कम से कम आप लोग इस तरह का चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। आप लोग स्कूल में गया, मेरा बच्चा अटेंडेंस ठीक है ना ठीक नहीं है, तो वो दैट बिकम्स वन पार्ट ऑफ द ग्रेट चेक एंड बैलेंसेस। तो ऐसा होना से पेरेंट और टीचर मिलाने से होता है। सिर्फ टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, छुट्टी होने के बाद तो घर में ही जाते हैं, घर को तो आप लोग केयर करना है। आप लोग घर में क्या करता नहीं है, सिर्फ स्कूल में साल लोग क्यों हमारा बच्चा को ठीक नहीं करता, ये नहीं करता है। अगर तो बदतमीजी करता है उनको गाली देगा, तो अब जाकर अपोज करने आएगा क्यों मेरा बच्चा को गाली दिया। तुम्हारा अपना बच्चा को देखा नहीं है, आलूगुती है, एकदम 3rd क्लास कर रहा है, वो एकदम बदमाशी कर रहा है, उसको तो सेकंड पेरेंट का हिसाब से टीचर लोग उसको गाली देता है, उसको तुम लोग तो उल्टा कोऑपरेट करना है। ऐसा नहीं करके रिएक्शन आता है, वेयर तुम अपना बेटा को बेटी को चेक करता नहीं है, कोई भी बोलता नहीं है, गाली देता नहीं है। और इस तरह का हम लोग देखा है। इसलिए जो लोग बच्चा अभी अवार्ड मिलने का लायक करके यहाँ में आज काबिल होके अवार्ड देने के लिए आया, उसका माँ पिता को बोल रहा इन कंटिन्यूटी ये आने वाला ये करंट एकेडमिक सेशन में भी उसको अच्छे से, अभी तो एग्जाम चल रहा है तो ये करंट एकेडमिक सेशन उसका लोग को आने वाले साल को देगा। तो इसलिए ये उसको अच्छे से ध्यान देने से हम लोग का इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आगे बढ़ेगा बोल के, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट का जितना भी गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव तो हेल्थ को अच्छा करना है, और जिसका चलते आदमी को इलाज हो, कोई बीमार वाला को, देन एक तो एजुकेशन है, बाकी डिपार्टमेंट को उसका बात। ऐसे करने का मतलब हम लोग का थोड़ा ध्यान से आप लोग मम्मी पापा ध्यान दे दो, और स्टूडेंट तुम लोग अच्छे से पढ़ो, जो नहीं आया उसका बता दो, और उसका बाद में गुरुजी लोग तो है ही है, और हेड ऑफ स्कूल लोग तो है ही है, और हम लोग डिपार्टमेंट बॉस तो है ही है। इसलिए कुल मिला के सब हम लोग कंबाइन करने से हम लोग का स्कूल एजुकेशन का क्वालिटी भी अच्छा होगा और रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो इसलिए आप लोग नहीं सोचना है ये DDSA उस दिन एजुकेशन कॉन्क्लेव में निकाल करके 96 मिनट भाषण दिया था, इस तरह का देगा नहीं क्या मत सोचो। अभी मेरा यहाँ बात खत्म होगा क्योंकि शॉर्ट प्रोग्राम है, और हम लोग का गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट अभी बोलना है, तो ध्यान से सुनना है। जब तक बात करेगा इधर उधर मतलब मोबाइल करके आगे पीछे नहीं करने से ठीक है। तो इसलिए once again thanks everyone those who are present here today, starting from chief guest and guest of honor and all the HOAs and all the supporting staffs from the DDC office and of the nearby school who have come here today. Thanks a lot. Now I invite our guest of honor, Jila Parishad Chairperson Sri Nyamar Rivasar, to share his valuable thoughts with us. आप सबको नमस्कार। Today's chief guest, most learned Sri Ijumamu ADC Basra, and respected DDC and Sri Modan Ruba DEO and Tojum Juddo DPC and Principal Government Higher Secondary School Darul and all the dignitaries. First of all, I want to congratulate to those students who have been selected for this meritorious Golden Jubilee Award. और इसका ऊपर में हम आपको ये ऑनरेबल CM को भी हम थैंक्स देना चाहते हैं। आप ये स्कीम लेके स्टूडेंट को इंस्पायरेशन और आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रोग्राम के वजह से हम एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, why most of the parents they prefer for a private school rather than government school. मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में आपका सब लर्नेड टीचर्स है। आज का दिन में जो टैलेंट टीचर्स लोग है इसी को तो अपॉइंटमेंट किया जाता है आज का दिन में। हाँ, गवर्नमेंट
प्राइवेट स्कूल को भी हम उन इतना ब्रिलियंट टीचर ने हम नहीं बोलने जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब जो है, जितना टीचर्स है गवर्नमेंट स्कूल का, सब सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट लोग है, लेकिन पेरेंट लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल ही अच्छा स्टूडेंट प्रोडक्ट करता है बोल के, सब ऐसा सोचते हैं। आई थिंक दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हमारा गवर्नमेंट टीचर लोग है, इतना सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट लोग है, जो टॉप कंपटीशन में एग्जाम में कम्पीट करके वो टीचर बने। अब उसमें क्या होता है कि आज हम लोग गवर्नमेंट टीचर को ब्लेम करते हैं जनरली, माने अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, अच्छा स्टूडेंट प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सब वही बोलते हैं। मेरा मानना ये है कि टीचर तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि सिर्फ टीचर को ही छोड़ देते हैं, पेरेंट का कोई रोल ही नहीं होता है। तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि उन लोग का टाइम टेबल रूटीन ये सब सही ढंग से करता है। अब रंगा क्या होता है कि आलम तीसरे नहीं मापा की दो आलू मारो पेरेंट केयर को मारो कोई, तो इक्वल रोल होना चाहिए पेरेंट का तरफ से भी। जैसे स्कूल टाइम में टीचर का रोल है स्टूडेंट को पढ़ाना, और आफ्टर स्कूल फिर सुबह शाम को अपना पेरेंट का भी दायित्व बनना है, अपना बच्चा को ट्यूशन में ले जाना और खुद भी टाइम देके ये कर पढ़ाना है। नी का दयो ऋतु कुदा तीसरे हम सिर्फ छोड़ दे के अगर अपना रोल को प्ले नहीं करते, पेरेंट का रोल प्ले नहीं करते। अब बच्चों आप लोग को भी हम ये एडवाइस करते हैं, जो अभी आप लोग को सेलेक्ट किया, ये अवार्ड मिल रहा है, उसको सिर्फ आप लोग अपना ये में बस यहाँ से अवार्ड को ले लिया चुपचाप अपना घर में बैठ गए, ऐसा मत करो। आप लोग ये वाला अवार्ड को भी अपना दोस्त को शेयर करो, जो आज हमें नहीं है, देखो हमको इतना ये अवार्ड मिला है बोलकर, तो उन लोग को भी इंस्पायरेशन मिलेगा। इसलिए वो टीचर्स का मैं थैंक्स देता हूँ, आप लोग अच्छा स्टूडेंट प्रोडक्ट किया है, और आप लोग का कारण से ये आज जो अवार्डीज है आज यहाँ में बैठे हैं। अब और बच्चों आप लोग को भी बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष दे रहा है कि माने इन फ्यूचर में भी आप लोग ऐसे कामयाबी में आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच। Now may I request our Assistant Deputy Commissioner Ijum Angu sir to give a words of blessing and advices to the awardees and the dignitaries present here. Honorable Jilla Parishad Chairperson, respected Deputy Director School Education, officer colleagues sharing me in the days, principal, vice principal, headmasters, learned teachers of schools, guardians, and students who have been called upon here today. Good morning to all of you. सबसे पहले मैं DDC सर को थैंक्स करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस प्रिविलेज इस काबिल समझा कि आज का इस सभा में प्रिविलेज दिया आप लोग का साथ बैठने का, ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने का एक प्रिविलेज मौका हमको दिया। At the same time, my appreciation to all those school authorities who have created such students, who have grown such students, who could fulfill your aspirations to be presented, to be awarded as meritorious student, Golden Jubilee Meritorious Student Award, who have been called upon here today. Mo awgat ka anap gadamchin sincerely appreciate dangna. It should be because of your personal intervention कि आपका बच्चा इस काबिल निकला कि आज हम लोग के साथ यहाँ चेहरा देखने का मौका मिला। हम लोग देश भर में विकसित भारत
एक विजन देख रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेरा जिला परिषद चेयरपर्सन ने भी अभी बताया। विकसित भारत तभी हो पाएंगे जब हम इन बच्चों को, आज जो हम गोल्डन जुबली मेरिटोरियस अवार्ड दे रहे हैं, इन बच्चों को ग्रूम करें। ये गोल्डन जुबली अवार्ड भी इसी विजन को लेके आज दिए जा रहे हैं कि विकसित भारत, जब हम इंडिपेंडेंस के सेंटिनरी जब मनाया जा रहा होगा, 100 ईयर्स जब मनाया जा रहा होगा, उसमें देश काफ़ी आगे निकल चुका हो जाना चाहिए। आज का जैसे गरीबी, हर तरफ गरीबी देखने को मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। किसको ब्लेम करें समझ में नहीं आ रहा, इस हालत में है। मैं जब तक आज देश के इन छोटे छोटे बच्चों को ग्रूम नहीं करेगा, तब तक हम लोग जितना पढ़ा लिखा बोलने से भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज़ादी नियम से मिल चुके हैं, लेकिन गरीबी से, बीमारी से आज़ादी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग का जितना थोड़ा मोड़ा आमदनी कमाई जो जा रहे हैं, बच्चा को पढ़ाने में, अपना बीमार को ठीक कराने में, साफ सफाई रखने में खर्चा किए जा रहे हैं। देश को डेवलप करने में, आगे ले जाने में हम खर्चा नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ तभी आगे बढ़ पाएगा जब हम इस लेवल के जो आज के बच्चे, जिनको हम बुला के यहाँ मेरिटोरियस डिक्लेयर करने जा रहे हैं, उनको जब तक तो अच्छा ग्रूम नहीं करेगा, अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, में आगे नहीं हम लोग जा पाएगा। पढ़ाने लिखाने का भी काफ़ी प्रकार होता है कि एजुकेशन, आप लोग सभी को पता होगा, बच्चा को लिटरेट कराना, बुकिश नॉलेज दे के सर्टिफिकेट गैदर कराना एजुकेशन नहीं है। ए पर्सन मे बी लिटरेट बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ही इज एजुकेटेड। एजुकेशन होना, एजुकेटेड होना अलग ही एक स्तर होता है, अलग ही एक लेवल होता है। तो उस लेवल तक हमको लेके जाना। आज जितना एजुकेशन से हमारा यहाँ फंक्शनरी बेटा है, मैं उन सभी को भी फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चा को सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं है, उनको एजुकेटेड कराना, हर महीने आगे बढ़ाना है। हम लोग सिर्फ किताबी नॉलेज पढ़ाते हैं। आज भी हमारे लेवल में जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, जो लिटरेट, हाईली लिटरेट है, डॉक्टरेट बन के घूम रहे हैं, हाईली एजुकेटेड, क्या बोलता है, सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, लेकिन एजुकेटेड नहीं हो पा रहा है। बाजार में कचरा जो जमा हो रहा है, उनको एक दूसरा को तेल रहा है। हम लोग सिविक सेंस कम हो रहा है। हो जाएगा, गवर्नमेंट अर्बन डिपार्टमेंट है, ये लोग देख लेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनका काम है क्लीनलीनेस। सोशल स्तर पे, कल्चरल स्तर पे किस लेवल का अपना कल्चरल आइडेंटिटी बढ़ाना है, उनको भी दूसरा लेवल को हम छोड़ के घूम रहे हैं। अपना लेवल से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। दिस इज ओनली बिकॉज वी आर नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड आवरसेल्फ, वी हैव नॉट प्रॉपरली गिवन एजुकेशन टू आवरसेल्फ। ये चीज़ को, सारा चीज़ को लेके आगे बढ़ने की जरूरी है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल के, ये जो आज गार्जियन यहाँ आए हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि बच्चे जो आज यहाँ जो रिसीव करके निकल जाएंगे, उनको उतना मतलब पता नहीं होगा। मतलब आपको ही पता है, गार्जियन जो आए हैं, कि इनको जाया होने मत दीजिए। ये जो आपको आज मेरिटोरियस है बोल के गार्जियन को दिखा के बच्चा जा रहे हैं, ये एक इंडिकेशन है फ्यूचर में आगे बढ़ने का। एक बच्चा में क्षमता है कि आगे बढ़ने का क्षमता है, इनको हमें बनाए रखना है, इनको जाया नहीं होने देना। उनका रिस्पॉन्सिबल हम एज ए पेरेंट हम लोग का ही है। हम एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट, हम सभी का है। मेरा DDSC सर, जिला परिषद, ऑनरेबल जिला परिषद चेयरपर्सन काफ़ी अच्छे बातें आज बता के गए हैं। तो उन सभी को मद्देनज़र रख के और इस मेरिटोरियस को बच्चा में और आगे कैसे करके ग्रूम करके आगे एजुकेशन बढ़ाना है, कैसे करने से देश को उस लेवल, जब 2047 में हम जब सेंटिनरी मना रहा होगा, आज के बच्चे जो
यहाँ बैठे हैं छोटा छोटा बच्चे, वो लोग उस लेवल में आगे बढ़ चुका होगा, उस लेवल तक हम लोग आगे बढ़ने का एक रिजोल्यूशन लेके, मैं थोड़ा सा अपना लेवल में तबीयत से भी हूँ, लेकिन डीपीसी साहब बोला कि नहीं ऐसे फंक्शन में आना चाहिए, देखना चाहिए कौन कौन मेरे पेरेंट्स है, कौन कौन बच्चे हैं जो ऐसे में आगे बढ़ रहा है, देखेंगे जरूर देखेंगे बोल के उनको भी वो करके आज ज़बरदस्ती आया हूँ। माय सिंसियर congratulations to all those meritorious students, best wishes to them, best wishes to the parents also, उनको बच्चे को आगे बढ़ने का मदद करें। Thank you all. Now comes the most awaited and proud moment of today's program, the felicitation of meritorious students from class 3 to class 12 who have secured first, second and third position in the district. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसले से उड़ान होती है. I request the Honorable Chief Guest, Ijum Sir, to kindly come forward for the presentation of awards to the awardees. Let's begin with class 12. Miss Tosum Jirdo secured first position from Government Higher Secondary School, Basar, with a percentage of 82.6. Then Ms. Kentaruram secured second position from Government Higher Secondary School, Basar, with a percentage of 80.8, followed by Mugagadu. Sri Mugagadu secured third position from Government Higher Secondary School, Tirbin, with a percentage of 79.6. Now class 11. Ms. Neha Singh from class 11 secured first position from Government Higher Secondary School with a percentage of 80.4. Gori Bada secured second position from Government Higher Secondary School, Daru, with a percentage of 77.4. If parents are present here, you are requested to accompany the awardees. All the guardians are requested to accompany the awardees. Followed by Miss Asha Parveen. Miss Asha Parveen secured third position from Government Higher Secondary School, Basar, with a percentage of 75.2. पेरेंट्स आने से आप लोग को रिक्वेस्ट है, बच्चों के साथ आप भी दाइस पर आ जाए. Okay, now class 10. Miss Sunidhi Acharji secured first position from Government Secondary School, Basar Bajar, with a percentage of 82.6. Miss Sunidhi Acharji.
followed by Miss Saloni Kumari. Miss Saloni Kumari, who secured second position from Government Higher Secondary School Basar with a percentage of 76.4, followed by Padak Nyodu. Sri Padak Nyadu, who secured third position from Government Higher Secondary School Basar with a percentage of 72.4. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Now I will request the Honorable Guest of Honor to kindly come forward. Guest of Honor, Nyamar sir, to kindly come forward for the presentation of awards to the awardees. Now Class 9. Class 9, Miss Jumse Ruba, who secured first position from Government Secondary School Basar Bajar with a percentage of 83.4. Followed by Bina Lombu. Miss Bina Lombu secured second position from Government Higher Secondary School Basar with a percentage of 81. Followed by Miss Kunsang Wailama. Miss Kunsang Wailama secured third position from Government Higher Secondary School Basar. Now Class 8 awardees. Miss Minisa Gadu secured first position from Vivekananda Kendra Vidyalaya Basar with a percentage of 94.2. Followed by Topi Ruba. Miss Topi Ruba secured second position from Vivekananda Kendra Vidyalaya Bashar with a percentage of 92.6. Followed by Gerpi Lombu. Miss Gerpi Lombu secured third position from BKB Basar with a percentage of 88. Class 8. Now Class 7, Miss Yorma Carlo secured first position from Government Higher Secondary School Daru with a percentage of 74.8. Followed by Miss Bari Odi.
Ansari Ori secured second position from Government Secondary School, Basar Bajar, with a percentage of 70.2. Ms. Ringam Doyom secured third position from Government Higher Secondary School, Tirbin, with a percentage of 68. Thank you, Riva sir, for taking your time. Now I request our DDSC sir to kindly come forward and felicitate the awardees. Now class 6, Master Malubam secured first position from Government Secondary School, BAM, with a percentage of 80. Master Gerba Bagra secured second position from Government Higher Secondary School, Darul, with a percentage of 77. Followed by Paggal Hat. Sri Paggaruhar secured third position from Government Higher Secondary School, Darul, with a percentage of 75.5. Now class 5. Miss Nuri Basar secured first position from Abotani Mission School with a percentage of 97. Miss Unni Doyom secured second position from Vivekananda Kendra Vidyalaya, Vasar, with a percentage of 94.25. Followed by Master Jongki Jilen. Master Jongki Jilen secured third position from Vivekananda Kendra Vidyalaya, Basar, with a percentage of 93.25. Now class 4. Miss Maribam secured first position from Government Secondary School, BAM, with a percentage of 81. Miss Tayaba Fardos secured second position from Government Higher Secondary School, Tirbin, with a percentage of 76. Followed by Miss Mitu Basar. Miss Mitu Basa secured third position from Government Upper Primary School, Nigam, with a percentage of 70.6. Now, class 3. Miss Tindi
Linde Jampen from Government Upper Primary School Gori secured first position with a percentage of 73. Miss Jenyo Lombu stood second position from Government Secondary School Thai with a percentage of 68. Miss Ibu Bam stood third position from Government Secondary School Bam with a percentage of 68. Thank you, Didesi sir. Good morning, one and all. Honorable Chief Guest of today's Golden Jubilee Meritorious Student Award, second edition 2026, Sri Izum Amoji, Additional Deputy Commissioner, Laparda District. Honorable Guest of Honor, Sri Nyamar Rivaji, Jila Prasad Chairperson, Laparda District. Most respected DDSC Laparda, Sri Tommy Dokeji. Respected Principal Government Higher Secondary School, Dari, Papi Siram Medamji. Most respected District Adult Education Officer, Sri Madan Ribaji. Respected DPC, Sri Tojum Jedoji, and Block Education Officer and Nodal Officers of today's program, Sri Nomi Lombeji, BO Establishment, and all the officers and officials of Education Department, respected parents, and my dear students. In the concluding part of today's program, while delivering this vote of thanks, I really extend the heartfelt gratitudes on behalf of the organizing committee and the Department of Education to our Honorable Chief Guest and Guest of Honor for sparing your valuable time and delivering inspirational and motivational speech before the students. Really thank you, both the Chief Guest and Guest of Honor. I also extend our heartfelt thanks to our DDC sir, who actively play a proactive role in the management in the whole episode of organizing this second edition Golden Jubilee Meritorious Student Award program. So I also thank all the officers and officials of Department of Education who involved in making this program a grand success. I also thanks to all the parents, those who have come along with the students to motivate and to support their words or the children's. I also thanks our Bimol Dada, who always give positive note whenever called for. And lastly, but not the least, I also thank Karko Welfare Society for sparing building on higher basis. Thank you.